Hello everyone, welcome to my channel Econ Smart Classes. So I'm going to cover chapter 2 in this video series. So let's start with 2.1 section. Alright. So as you can see in the PDF here that let's first understand what are natural numbers. All of you must have some basic understanding of it. Natural numbers like we have all the positive integers in which you have all the positive numbers to for whatever is mentioned. Odd numbers होते हैं specifically. Positive में हमारे पास odd even all the numbers are counted. Then you have integer series. Integer को क्या कहते हैं? Negative भी होते हैं उसमें, positive जैसे 0 onward it's a positive integer line that we have. Negative side we have number line में to the left of 0, right? So both plotted together it's called a number line, okay? In which you have all the integers of negative numbers as well as the positive set of numbers. इन सबको हम number line में represent करते हैं. Alright, then we have rational number. So rational number we all know P by Q का form है, with Q not equal to 0, right? So any number can be represented like that and we call it a rational number. If a number cannot be represented in this form, we say it's a irrational number. या फिर square root में अगर कोई number है, we say it's a irrational number. Fine. So any number, like you can see, it can be represented if it can be represented in a rational number form. So yeah, we call it a rational number. अगर ये finite number है, जैसे आप ये देख सकते हो डेसिमल में है 3.145, तो इसको हम rational number से काउंट करेंगे, है ना? rational number एक डिफाइंड सेट ऑफ सीरीज का सम है. So irrational number, however, अगर इस टाइप हमें पता है 100/3 कर लो, है ना? 1000/4/3 अगेन. If such examples that we have, इनमें जो डेसिमल के बाद नंबर आता है वो इनफाइनाइटली, कैलकुलेटर से चेक करो, खुद से चेक करो, यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3 3s हियर, है ना? तो इसको हम इरैशनल नंबर कहते हैं. जस्ट नो इट फॉर योर नॉलेज इन केस यू डोंट नो. सो इरैशनल नंबर और रैशनल नंबर का क्या डिफरेंस है? जैसे ऑल दीज नंबर्स माइनस of root 5 pi to the power root 2 like that. ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है. पॉइंट डेसिमल के बाद आप देख सकते हो 1 2 1 1 1 2 2 2, एक पैटर्न है 1 2 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है? तो ये एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं आफ्टर द डेसिमल. सो वी से इट्स अ इनफिनाइट सीरीज. ओके ओके. सो जैसे a by 0 इज नॉट डिफाइंड. रियल नंबर होते हैं ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट जहाँ हम रियल नंबर को डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे a by 0 का फॉर्म है, ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो ये एक रियल नंबर में नहीं आता, राइट? रेस्ट ऑल द नंबर्स आर बेसिकली काउंटेड इन द रियल नंबर्स. Let's move on. I think it was a very small exercise 2.1. So let's do 2.2 also, so that we cover at least good amount of section. Okay. Now a to the power n को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये एक a again can be a number. n is number of times that number is repeating. जैसे a to the power square, a to the power 3, a to the power 4. तो जितने भी number of times n लिखा है उतने times वो multiply होगा number, है ना? जैसे a multiplied by a, इसका मतलब a square. तो इसको हम a to the power n को इस तरीके से represent करते हैं. Now a to the power 4, इसको हम 4 times a dot a, basically dot a से represent कर दो. It's the same thing, right? So a multiplied by n multiplied n number of times, n factor कहते हैं, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a to the power n. फाइन. ना a एक्सपोनेंट n, nth पावर जहाँ पर a बेस है और n बेसिकली इज द पावर एक्सपोनेंट है. अब देखो a को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं p by q का फॉर्म रैशनल नंबर है और पावर n है, तो मतलब अगर n इक्वल टू नंबर ऑफ 2 है तो दैट मीन्स p by q टाइम्स p by q. सिंपल. अब यहाँ n 5 है इसलिए 5 टाइम्स p by q को मल्टीप्लाई किया, राइट? इट्स सिंपल. नाउ a टू द पावर माइनस n, ये हमने पढ़ा होगा अपने स्कूलिंग में, राइट? माइनस पावर में है तो उसको हम 1 by a से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? a टू द पावर माइनस 1, a टू द पावर माइनस 1 है तो इसको 1 by a से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस. सो I hope it's clear. If you're not aware of this concept, please make sure you understand. It's a very basic concept. Okay, fine. Let's move on. Now a to the power r multiplied with a to the power s. S or r, again number of times a is repeating
मल्टीप्लाइड विद ए नंबर ऑफ टाइम, ए इज रिपीटिंग एस नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए पावर्स इसमें ऐड हो जाएंगी, मतलब आर प्लस एस पावर ऐड हो गई, ठीक है। अब जैसे 2 टू द पावर आर है, 2 टू द पावर एस है, या फिर हम 2 टू द पावर आर को 5 ले लिया, एस को सपोज मैंने 3 ले लिया, ठीक है। तो 2 टू द पावर 5 प्लस 3 8 इस ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइन। नाउ यहाँ पे पावर ऐड हुई है जब ए मल्टीप्लीकेशन में है। अब ए टू द पावर आर उसकी पावर एस है फर्दर, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए टू द पावर आर इंटू एस, मतलब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ए टू द पावर आर इंटू एस। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड यू नो द ब्रेक डाउन ऑफ इट। सो लेट्स मूव ऑन, ए टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड विद ए टू द पावर 5, इसको हम ब्रेक डाउन करके ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया फर्दर ए को 5 टाइम्स, है ना। तो पावर आपकी ऐड हो गई, आप देखो सेम एग्जांपल दैट वी डिस्कस। तो इसमें पावर आपकी ऐड हो गई, इसमें आर हमने 3 लिया और एस को 5 लिया, तो पावर ऐड हो गई 5 प्लस 3 8, करेक्ट। नाउ ए टू द पावर स्क्वायर इंटू 4, इसका मतलब ए स्क्वायर ए इंटू ए, इसको 4 टाइम्स आपने फर्दर मल्टीप्लाई करना है। ए इंटू ए इंटू 8 ए इंटू 8 तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट। तो बना, आप स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 4 से, पावर मल्टीप्लाई होंगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि ए टू द पावर उसका फर्दर ब्रैकेट में है। तो ए टू द पावर 2 टाइम्स 4 8, so this is how we write the 2 breakup, ठीक है। अब थर्ड टर्म अंडरस्टैंड करते हैं, a to the power r डिवाइड बाय a to the power s। Okay, so we were discussing a to the power r divided by a to the power s, so it will become, अब आप देखो पावर यहाँ पर r माइनस एस हो जाएगा, ये हमने बेसिक अंडरस्टैंड किया हुआ है अपना आई थिंक स्कूलिंग में, कि अगर कॉमन बेस है ना, a टू द पावर r डिवाइड बाय a टू द पावर s, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पावर इसमें सब्सट्रैक्ट होगी r माइनस एस, r बड़ा हो सकता है छोटा हो सकता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो अगर r छोटा है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, डजेंट मैटर, है ना। a टू द पावर r माइनस एस, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डिवीजन ऑफ a टू द पावर r डिवाइड बाय a टू द पावर s, फाइन। मूविंग ऑन, सो वी हैव अब a टाइम्स b मल्टीप्लर डिवाइड इसका होल पावर r, सो दैट मीन्स हम a टाइम्स b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं r नंबर ऑफ टाइम्स, सो ए बी टाइम्स ए बी लाइक दैट, हम r टाइम्स फैक्टर मल्टीप्लाई किया, इसको स्प्लिट कर दो कि a को r टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्दर b को r टाइम्स, तो a टू द पावर r मल्टीप्लाइड विद b टू द पावर r, तो इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट a बाय b का पावर r है, तो दैट मीन्स a बाय b को हम r नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेपरेटली भी लिख सकते हैं a टू द पावर r, है ना, डिवाइड बाय b टू द पावर r, ऐसे। अब इसको इन्होंने ऐसे लिख दिया इस फॉर्म में, a टू द पावर एज इट इज, और b टू द पावर r डिवाइड में है, मतलब 1 बाय b टू द पावर r को हम क्या लिख सकते हैं, b टू द पावर माइनस r, है ना। तो ये मल्टीप्लाई डॉट में ऑलरेडी है, तो a टू द पावर r मल्टीप्लाइड विद b टू द पावर माइनस r, ठीक है। नेक्स्ट a b c d e का पावर r को हम स्प्लिट करके a टू द पावर r b r c टू द पावर r लाइक दैट इट इज स्प्लिट फर्दर, ऑलराइट। सो आई होप this is clear, concepts are clear. Moving on to the example part, so x to the power p times x to the power 2p, ठीक है। इसको हमने देखा बेस x कॉमन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, p प्लस 2p 3p हो गया पावर, है ना, सिंपल है। अब b पार्ट देखें, t टू द पावर s डिवाइड बाय t टू द पावर s माइनस 1, तो बेस सेम है, पावर्स जो है पावर्स में ऑपरेशन हो रहा है, t टू द पावर s माइनस ऑफ s माइनस 1, तो अब इसको आप सॉल्व कर दो, है ना, चेक कर लो, s माइनस s माइनस 1, इट इज सॉल्व फॉर द s कैंसिल 1 बचता है t टू द पावर 1, सो दिस इज हाउ इट इज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट a square b cube a to the power minus 1 b to the power 5, we just rearrange it, if you can see a square a to the power minus 1 मल्टीप्लीकेशन में इसको हमने कॉमन ले लिया, बेस कॉमन है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। पावर b की पावर्स जो है ऐड हो जाएगी, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाइड विद b टू द पावर 8, ठीक है। इस तरीके से वी कैन rearrange and write it. Now d last part we can write it like this, t to the power p t to the power q minus 1 divided by t to the power r, so इसको आप rearrange करो, so all the terms can be taken together, base same है, तो p प्लस पहले ऊपर की टर्म्स को इन्होंने ऐड कर दिया, p प्लस में q माइनस 1, फिर नीचे की टर्म्स को माइनस कर दिया, माइनस r
एंड माइनस में s माइनस 1, ठीक है, दोनों को क्लब करके माइनस कर दिया. दिस इज हाउ वी गेट द टर्मोलॉजी फॉर द लास्ट टर्म. फाइन. नेक्स्ट एग्जांपल. सो x टू द पावर माइनस 2 टाइम्स y टू द पावर 5 इक्वल्स टू 5, ये हमें दिया हुआ है. सो कंप्यूट करना है x टू द पावर माइनस 4 टाइम्स y टू द पावर 6. अब आप देखो ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है. हम देख सकते हैं ये x टू द पावर माइनस 4 y टू द पावर 6 इज सिंपली स्क्वायर ऑफ इट, है ना. मतलब x टू द पावर माइनस 4 y टू द पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर माइनस 2 y टू द पावर 3 का होल स्क्वायर. तो ये सिंपली 5 का होल स्क्वायर हुआ. 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है. सो इट्स सिंपल. दिस इज pretty much straightforward. So let's just understand the next point now, which is x to the power 6 times y to the power minus 9. Okay, so how do you break it up? Let me just x to the power 6 y to the power minus 9. So if you can see, it's the multiple of 3, ठीक है. तो x to the power again same हम जो हमें दिया हुआ है. सो x टू द पावर माइनस 2 y टू द पावर 3 का ये बेसिकली क्या हो गया, इट इज 3 टाइम्स ऑफ इट, करेक्ट. एंड ये माइनस में करते हैं तो इट बिकम्स क्लियरली दिस वैल्यू. सो माइनस 2 टाइम्स माइनस 3 इज 6, 3 टाइम्स माइनस 3 इज माइनस 9, करेक्ट. सो पावर में माइनस 3 है, विच मीन्स ये टर्म इक्वलेंट है 5 के. सो आई जस्ट राइट 5 टू द पावर minus 3, which becomes 1 by 125. Okay, so this is how we can solve this problem. All right, so I hope it's clear. Now last part, which is x square y to the power minus 3 plus 2 x to the power minus 10 y to the power 15. ठीक है. अब इसको ब्रेकअप क्या करना है, सिंपली हम देख सकते हैं यहाँ पर ये भी मल्टीपल आ रहा है, x टू द पावर स्क्वायर y टू द पावर माइनस 3 का, है ना. सो यहाँ x टू द पावर स्क्वायर y टू द पावर माइनस 3 के पावर में इफ वी राइट माइनस 5, ठीक है. दिस इज हाउ वी कैन decompose it and take this terminology common, take it out. As you can see, it's taken common, and this is equals to 5 basically. इसमें आपने 5 से replace कर दिया and you just put the values and you get this number. Okay, so it's very clear, it's very simple also. Anyways, move on to the next example. So it just says that there are few certain times we do some mistakes, like जैसे एक नंबर है -10 और whatever number that you take, उसका स्क्वायर करते हैं. तो स्क्वायर का मतलब होता है that number is multiplied 2 times, ठीक है. -10 times -10. however -10 का जस्ट स्क्वायर लिखा है. ओके, दैट इसका मतलब है हम we write it as 10 को we write it as 2 times, 10 times 10 माइनस एज इट इज माइनस आउटसाइड है 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, है ना. तो माइनस ऑफ 100 हो गया. हाउएवर दीज टू टर्म, मतलब ब्रैकेट में -10 हो और ब्रैकेट हटा के -10 का स्क्वायर लिखते हैं तो दैट वैल्यू डिफर्स. फाइन. सो वी हैव टू कीप इन माइंड सर्टेन थिंग्स. सो अगर एंट्रेंस में इस टाइप से सिंपल क्वेश्चंस दिखते हैं देखने में तो थोड़ा सा नोशन का ध्यान रखना है दैट ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस में या इट्स विदाउट द ब्रैकेट. सो कीप दिस इन माइंड. फाइन. So small things but we have to be very careful with little things. ठीक है. अब देखो 2x to the power -1 है. so कोई ब्रैकेट में उसका पावर -1 है, इट मीन्स 1/2x है ये वैल्यू, राइट. सिंपल भी हमें समझ आता है. हाउएवर अब देखो आप what it's mentioned. So here the product is raised to the power of -1 like this. And on the other hand, this thing 2 into x to the power -1. अब देखो x की पावर -1 है, it means 2/x हो गई. अब x to the power -1 means it's equals to 1/x, correct. So 2/x, this is how we can write it. So this is again different from 1/2x. So ध्यान रखना है अगर ब्रैकेट में ये टर्मिनोलॉजी है और 2x तो इट्स द होल थिंग पावर -1. ओके. नेक्स्ट थिंग, वॉल्यूम ऑफ अ बॉल विद रेडियस. हमें पता है अगर रेडियस r है तो वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं, ये हमने स्कूलिंग में पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो 4/3 पाई r स्क्वायर, ऑल ऑफ यू स्टडीड पाई r स्क्वायर, ठीक है. क्यूब, सॉरी वॉल्यूम है ना. सो 4/3 पाई r क्यूब. नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ द रेडियस इज डबल. अब रेडियस को इसमें डबल कर दिया. सपोज रेडियस को हमने रिप्लेस कर दिया 2r से. देखो अब ये ध्यान रख रहे हैं सिंपली इट्स अ मैथमेटिकल टर्म. सो पुट द नंबर, रेडियस को डबल किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा. अब देखते हैं 2r करने से 2 की पावर क्यूब विच मेक्स इट 8, ठीक है. तो अब 8 कम्स आउट, दिस इज द वॉल्यूम ओरिजिनली.
ओरिजिनल वैल्यू का वॉल्यूम जो है उससे 8 टाइम्स मल्टीपल हुआ, सो द न्यू वॉल्यूम v प्राइम लेट से इट इज 8 टाइम्स ऑफ v, ठीक है। सो 8 टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, however radius just we had twice the radius, so we have to be careful again, little things how to handle such things. So moving on, percentages and compound interest. So let's say we deposit certain amount. I think you're also familiar with this concept, but let me quickly take you through this, so anything that is not clear will be clear to you. So suppose $1,000 is deposited in the bank that pays interest rate of 8% at the end of each year, and what will be the total amount after say x number of times. So कैसे हम देखते हैं, हमें पता है ये चीज बेसिक है, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया, सपोज 1000 है, लेट्स से दैट इज इक्वल्स टू k, ठीक है, टाइम्स 1 प्लस r बाय 100, ठीक है। r इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस रेट पे वो इंक्रीज कर रहा है, दिस विल लीड अस टू द टोटल अमाउंट एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। एक साल के बाद इतना अमाउंट हमें मिलेगा, पावर विद पावर 1 मतलब k 1 प्लस p बाय 10 टू द पावर 1 का मतलब होता है एक साल के बाद, t इज द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद दैट अमाउंट ग्रोज, है ना, जैसे k 1 प्लस p बाय 100 इंटू 1 प्लस p बाय 100, सो इट मीन्स ये 2 टाइम्स 2 ईयर्स के बाद इतना ग्रो हुआ वैल्यू, 1 टाइम है तो जस्ट बिकम 1 प्लस p बाय 100 नेक्स्ट ईयर की जो वैल्यू होगी, तो 2 ईयर्स के बाद ये ग्रो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, है ना, क्योंकि ये बेस पर हमारा वैल्यू ग्रो कर रहा है इतने परसेंट से, देन नेक्स्ट ईयर इट अगेन ग्रोज बाय 1 प्लस p बाय 100, सो इस तरीके से वी कम अप विद नंबर ऑफ टाइम्स कितना वैल्यू ग्रो कर रहा है, सो आफ्टर t नंबर ऑफ ईयर्स, t कुड बी एनी वैल्यू 1 2 3 4 व्हाटएवर, so after t number of years the value is basically k into 1 plus p by 100 to the power t, ओके, नंबर ऑफ ईयर्स के बाद इतना अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी विद p परसेंटेज रेट, आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है p इंटरेस्ट रेट पर, और दिस इज हाउ वी राइट k इज द क्वांटिटी व्हिच इंक्रीजेस बाय p% per year will have increased after t years, how much, by this much, where we write 1 plus p by 100, ये हमारा ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज के लिए हमें सब पता होना चाहिए, 1 plus p by 100 ग्रोथ इज p%, फैक्टर ग्रोथ, जब हम ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं, इट इज 1 plus p by 100, दिस इज हाउ वी relate it, fine. Let's do an example. So let's say new car is bought for $30,000, is assumed to decrease in value decrease हो रही है, अब वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हम 1 plus p by 100, क्योंकि उसमें ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज कर रही है वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वी राइट इट एज 1 minus 15%, ओके। सो हाउ डू वी राइट इट, 30,000 की जो वैल्यू है आफ्टर 1 ईयर कितना होगा, वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इट इज 1 minus of 15 by 100, ठीक है। अभी आफ्टर 6 ईयर्स चेक करें तो इसकी पावर 6 हो जाएगी, सो दिस विल बी द टोटल वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स, फाइन। सो वैल्यू सिंस डिक्रीज कर रही है, एज इट्स मेंशन वैल्यू इज डिप्रिशिएटिंग बाय 15%, सो विल राइट माइनस नेगेटिव में वैल्यू आपकी नेक्स्ट ईयर डेप्रिशिएट होके मिलेगी, नेक्स्ट ईयर अगेन मल्टीप्लाई बाय द ग्रोथ फैक्टर, ये ग्रोथ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 minus p by 100 से, सो 6 नंबर ऑफ टाइम्स के बाद चेक करेंगे, तो दिस इज हाउ इट विल गो। अब आप देख सकते हो 30,000 इंटू 0.85, 1 minus 15 by 100 0.85 हो जाएगा, है ना, टू द पावर 6, दिस मच विल बी द वैल्यू, इतना डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स, दिस इज हाउ वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड। नाउ एक्सपोनेंशियल डिक्लाइन क्या होता है, क्वांटिटी k which decrease by p% per year will have shrunk after t years, t years मतलब t नंबर ऑफ टाइम्स के बाद कितना डिक्रीज होगी, इतना, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया, k into 1 minus p by 100 to the power t, नंबर ऑफ ईयर्स जितने टाइम के बाद वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डू वी रियली नीड नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, सिंपली से सपोजिंगली एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं, हाउ मच मनी शुड हैव बीन डिपॉजिटेड इन अ बैंक 5 years ago in order to have $1,000 टुडे, मतलब आज अगर हमें 1,000 रुपए चाहिए तो हमें कितना 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था, राइट, इन ऑर्डर टू हैव $1,000 टुडे। तो इसको भी सेम तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड, हमें चाहिए 1 plus 8% इंटरेस्ट रेट पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, 8% कोई चीज इंटरेस्ट रेट पे ग्रो करिए, वो 5 years के बाद लिखा हुआ है इट शुड बी इक्वल टू 1,000, है ना। तो क्या हमारा k या x वट एवर टर्म दैट यू गिव, नोशन दैट यू गिव, सो 8% कोई चीज अगर ग्रोथ कर रही है, सो 1 plus 8% टू द पावर 5 ईयर्स के बाद कितना ग्रो करेगा वो वैल्यू,
दैट शुड बी इक्वल टू 1000. तो हमने ऑलरेडी लिख दिया द वैल्यू हियर, फ्यूचर वैल्यू 1000 होनी चाहिए. तो प्रेजेंट वैल्यू उस केस में 5 साल पहले की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट इज मल्टीप्लाइड विद 1 + 8% ग्रोथ फैक्टर. ठीक है, पावर में 5, क्योंकि 5 ईयर्स के बाद उसकी 1000 वैल्यू होगी. अब इसको अब रीअरेंज करके वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लो. 1000 डिवाइड बाय 1.08 की पावर 5 एंड यू गेट दिस नंबर which gives us exactly how much money should have been deposited 5 years back so that we get in the present how much value, $1000, right? So I hope this concept is clear. 2.1 section is clear and 2.2 basically. So I've covered 2 sections in this, and next video will cover 2.3 and beyond. Okay, so thank you so much for your time. I hope it was quite helpful to you. Any doubts, if any, please let me know in the comment box, or you can directly ping me on the WhatsApp number that's mentioned. Okay, thank you so much. See you. Bye bye.